بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آنکھ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز سے کھلی۔ میں نے چہرے سے کمبل ہٹایا تو مجھے ٹھاکر چچا نظر آیا جو زیرو پاور کے بلب کی روشنی میں میری طرف بڑھ رہا تھا اور اس کا ارادہ مجھے جگانے کا تھا۔ میری پہچان اس نے لازماً میری قامت سے کی تھی۔ اسے دیکھ کر میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ وہ مجھے اٹھتے دیکھ کر خاموشی سے پیچھے مڑ کر چلا گیا۔ میں نے الماری سے مشین گن نکالی، کندھے سے لٹکائی اور اس کے اوپر جیکٹ پہن کر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ شیتل منہ سر لپیٹ کر نیند کی گہری وادیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس پر ایک الوداعی نظر ڈال کر میں باہر آ گیا۔ ٹھاکر سیڑھیوں سے نیچے میرا منتظر تھا۔ ٹھاکر چاچا، تیاریاں مکمل ہیں؟ میں سرگوشی میں مستفسر ہوا۔ ہاں پتر، اس نے کہا، گھوڑا تیار ہے۔ اس کے ساتھ 2-3 دن کا خشک راشن، کپڑوں کا فالتو جوڑا اور تھوڑی سی رقم ایک تھیلے میں ڈال کر زین کے ساتھ لٹکا دی ہے۔ رقم؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ مگر کس لیے؟ پتر، پردیس میں ہو اور میرے پاس واحد گرو کا دیا بہت کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں ضرورت پڑ جائے۔ اس وقت کدھر مانگتے پھرو گے؟ اور میں کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ گھوڑے کی رسی تھام کر میں ٹھاکر رنجیت سنگھ سے معانقہ کیا اور کہا، چاچا، دعاؤں میں یاد رکھنا اور شیتل کو آج ہی کوشش کر کے اس کے والد تک پہنچا دینا، اور میری طرف سے اس سے بہت بہت معذرت کر لینا۔ اسے کہنا میں مجبور تھا۔ اگر زندگی نے وفا کی اور میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے تو میں لامحالہ اسے ملنے کے لیے آؤں گا۔ آخری فکرہ میں نے یوں ہی شیتل کی تسلی کے لیے ٹھاکر سے بول دیا تھا، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ میرا دوبارہ انڈیا آنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا اس وقت وہاں سے نکلنا مشکل بنا ہوا تھا۔ ٹھاکر سے ملنے کے بعد میں نے رکاب میں پاؤں ڈالا۔ میرا ارادہ اسی جگہ ٹھاکر سے الوداع ہونے کا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو پاتا، ٹھک کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز استبل سے متصل دیوار کے سرے کی طرف سے آئی تھی۔ میری چھٹی حس خطرے کا الارم بجانے لگی اور میں چوکنا ہو گیا۔ میرا خیال ہے ڈاکو ہے۔ ٹھاکر ہراساں ہو گیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں ہونٹ بھیجتے ہوئے بولا، آپ سب برآمدے کی آڑ میں ہو جائیں۔ میں نے گھوڑے کو استبل کے دروازے کے اندر کر کے تھپکی دی اور مشین گن کی سلنگ کا ہک کھول کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ ٹھاکر جلدی سے برآمدے کی آڑ میں ہو گیا۔ اس وقت دیوار کے سرے پر ایک سر نمودار ہوا اور پھر دائیں بائیں سنگن لینے کے لیے آنے والا دیوار کے اوپر لمبا لیٹ کر باہر موجود اپنے ساتھیوں سے کوئی بات کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ اوپر آتے گئے۔ جب ان کی تعداد دیوار پر 5 کے قریب ہوئی تو ان میں سے 3 دیوار سے لٹک کر نیچے کود گئے، جبکہ 2 ان کی حرکات کو کور مہیا کرنے لگے۔ میرے ایکشن میں آنے کے لیے وہی ٹائم مناسب تھا، ورنہ اس کے بعد وہ حویلی میں پھیل کر پوزیشنیں پکڑ لیتے اور ان کا مقابلہ کرنا نسبتاً مشکل ہو جاتا۔ مشین گن کے سیفٹی لیور کو سنگل شاٹ پر سیٹ کرتے ہوئے میں نے کاکنگ ہینڈل کھینچا اور اگلے ہی لمحے میں نے ٹریگر دبایا۔ گن نے 2 راؤنڈ اگلے اور دیوار پر لیٹے دونوں افراد چیختے ہوئے باہر جا گرے۔ دیوار سے نیچے کودنے والے اپنے ہتھیار سنبھال کر آڑ کی تلاش میں بھاگے، مگر ان کا یہ بھاگنا رائے گا کیا؟ مشین گن کی نال سے نکلنے والی بے رحم گولیاں انہیں راستے میں ہی چاٹ گئی تھیں۔ میرے لیے اس جگہ رک کر ڈاکو کا مقابلہ کرنے میں یہ قباحت تھی کہ حویلی کی دوسری دیواریں میری نظروں سے اوجھل تھیں۔ اس وقت میرے لیے سب سے بہتر جگہ 2 منزلہ عمارت کی چھت تھی، جس سے میں ارد گرد کے تمام علاقے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ حویلی کے اندر گھسنے والے تینوں بندوں کے گرتے ہی میں نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اندر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اچانک فضا دھماکے سے گونج اٹھی۔ میں نے اپنے آپ کو سینے کے بل زمین پر گرا لیا۔ گولی چلانے والے کا ٹارگٹ میں ہی تھا، مگر میری خوش قسمتی کے زگ زیگ انداز میں بھاگنے دوڑنے کی وجہ سے وہ میرا صحیح نشانہ نہ لے سکا تھا۔ زمین پر گرتے ہی میں نے 2-3 کروٹیں لی اور اپنا رخ فائر کرنے والے کی سمت کر لیا۔ وہ 4 دیواری کی مشرقی دیوار پر اپنی ٹانگیں دائیں بائیں لٹکائے بیٹھا مجھے نشانہ بنانے کی فکر میں تھا۔ اس کی جانب سے تیسرا فائر ہونے سے پہلے میری مشین گن گرجی۔ میں نے مسلسل 3 مرتبہ ٹریگر دبایا۔ میرے اندازے کے مطابق آخری دونوں گولیاں نشانے پر لگی اور وہ چیخ مار کر باہر کی جانب گر پڑا۔ میں برآمدے کی سمت دوڑا۔ برآمدے میں داخل ہوتے ہی میں جنوبی اور مغربی سمت میں آنے والی گولیوں سے محفوظ ہو گیا۔ ٹھاکر ہاتھ میں رائفل پکڑے مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ برآمدے کے ستون کے ساتھ بیٹھ کر میں نے حویلی کے صحن میں جھانکا۔ اس وقت رائفل کے 3-4 فائر ہوئے اور حویلی کے صحن کو روشن کرنے والے تینوں بلب ٹوٹ کر کرچیوں میں بدل گئے۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر چند لمحوں بعد 17-18 تاریخ کے چاند کی روشنی میں ارد گرد کے مناظر نظر آنے لگے۔ ٹھاکر نے میرے ساتھ پوزیشن لینی چاہی، مگر میں اس سے مخاطب ہوا، چچا، تم عورتوں اور بچوں کو اوپر پہنچا دو، ہم دوسری منزل سے ان کا مقابلہ کریں گے، یہاں پر ہم محفوظ نہیں ہیں۔ ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہ چاروں طرف سے حویلی کے اندر گھسے چلے آ رہے ہیں۔ ٹھاکر جی پتر کہتے ہوئے اندر کی طرف بھاگا۔ بلب ٹوٹنے کے بعد فائر کی آواز تو نہیں آئی، البتہ صحن میں 3-4 بندوں کے کودنے کے دھماکے ضرور سنائی دیے۔ یہ دھماکے جنوبی دیوار کی سمت سنائی دیے تھے، جو میری نظروں سے اوجھل تھی۔ میری نظریں مسلسل چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔
देवड़ी की छत पर मुझे एक हेवला नजर आया। मैंने बेदरेक 2 गोलियां उस सिमट में झोंक दी, मगर वो जल्दी से छत पर लेटकर गोली से बच गया। नामुनासिब रोशनी की वजह से मुझे सही निशाना लेने में दिक्कत पेश आ रही थी। जब तक क्लाशनकोफ की रियर साइड से फ्रंट साइड की टिप को मिलाकर फायर ना किया जाता, गोली का निशाने पर लगना गैर यकीनी था। दिफाई जंग के असूल के मुताबिक एक गोली से एक बंदा गिरना चाहिए, और मुझे एक बंदे को मारने के लिए 2-3 गोलियां चलानी पड़ रही थी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे एमुनेशन के ख़त्म होने की सूरत में भुगतना पड़ा। मेरे पास इस वक्त अटैच मैगजीन के अलावा 2 मैगजीनें फालतू थी। 30 राउंड फी मैगजीन के हिसाब से मेरे पास 90 राउंड मौजूद थे, जिसमें से 11-12 राउंड में फायर कर चुका था। मैंने 3-4 राउंड सहन के मुख्तलिफ गोशों में दाग दिए। मकसद इनकी पेशकदमी को सुस्त करना था। मेरी तरफ से खामोशी की सूरत में वो मेरी पोजीशन पर हल्ला बोल सकते थे, और तादाद के लिहाज से इन्हें लामहला हम पर फौकियत हासिल थी। इसी असना में सीढ़ियों की तरफ से मुझे ठाकुर और उसके बच्चों की तेज से चलने की आवाज़ आई। मैंने बेतरीक चंद राउंड मजीद हवा में उड़ा दिए। गो एक राउंड कीमती था, लेकिन इस जगह फायर करके इनकी पेशकदमी को रोका जा सकता था। जैसे ही मुझे अंदाजा हुआ कि ठाकुर अपने बीवी बच्चों समेत ऊपर पहुंच चुका होगा, मैं उल्टे कदमों पीछे हटा। मेरे चंद कदम पीछे हटने की देर थी। मशीन गन का एक बर्स्ट इसी जगह पर आकर लगा, जहां चंद सेकंड पहले मैं मौजूद था। इसका मतलब है इनके पास मशीन गन भी है। मैं खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया और मेरे कदमों में तेजी आ गई। सीढ़ियों के करीब पहुंचते ही 2-2, 3-3 सीढ़ियां फलांगते हुए बिजली की सी सरहद से दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। हमारा कमरा सीढ़ियों के इस एन सामने था। मैं गड़ाप से कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मशीन गन एक मरतबा फिर गरजी, और तमाम गोलियां कमरे के दरवाजे से गुजरती हुई अंदर आ गई, मगर तमाम लोग दरवाजे की दीवार से पीठ लगाए बैठे थे। यूं वो गोलियों से महफूज रहे। जान मेरे कमरे में दाखिल होते ही शीतल हैजानी लहजे में चिल्लाई, तुम कहाँ थे? ये कहते इसने ठाकुरानी के पहलू से उठकर मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। मैं यकलक चिल्लाया, बैठी रहो, खिड़की के सामने से मत गुजरो। वो सहम कर दोबारा ठाकुराइन के पहलू में बैठ गई। ललिता और कामनी भी अपनी माँ के पहलू में घुसकर थर थर कांप रही थी। हद तो ये है कि प्रकाश भी सुकड़ा सिमटा इन्हीं के दरमियान मौजूद था। 2 मंजिला कमरों की छत इस वक्त मेरे लिए बेहतरीन मोर्चा साबित हो सकती थी, मगर इस सूरत में मुझे वो कमरा छोड़ना पड़ता और छत पर रहकर इस कमरे की हिफाजत मेरे लिए नामुमकिन हो जाती। डाकू किसी भी वक्त हल्ला बोलकर सीढ़ियों पर से ऊपर आ सकते थे, और इनको रोकने के लिए अकेला ठाकुर नाकाफी था। औरतों के यरगमाल बनाकर वो आसानी से मुझ पर काबू पा लेते। कमरे में रहकर को मैं सही तरीके से इनका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन इतना इत्मीनान बहरहाल मुझे हासिल रहता कि मेरी मौजूदगी में किसी भी डाकू का कमरे में दाखिल होना आसान ना होता। कमरे की लाइट बुझाकर मैं दरवाज़ा मुकम्मल खोल दिया और ख़ुद दीवार की आड़ में लेट कर डाकू का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। डाकुओं की तरफ से फायरिंग की में शिद्दत आ गई, लेकिन मैं एमुनेशन की कमी के बायस इनको मुसलसल जवाब नहीं दे सकता था। मेरी ज़्यादा तवज्जो सीढ़ियों के ऊपर थी कि वहाँ से ऊपर कोई ना आ जाए। अचानक मुझे देवड़ी की छत से कूदकर 3 बंदे बरामदे की तरफ आते दिखाई दिए। मैंने शस्त्र लेते हुए ट्रिगर दबाया, मगर गन से ट्रच की आवाज़ निकली जो मैगजीन के खाली होने का ऐलान कर था। मैंने खाली मैगजीन उतारकर नई मैगजीन चढ़ाई, मगर इस वक्त तक वो तीनों बरामदे में पहुंचकर मेरी नज़रों से ओझल हो गए थे। पुत्र ठाकुर जो मेरे साथ लेटा खामोशी से बाहर सहन में झांक रहा था, मुझे मैगजीन बदलते देखकर आहिस्ता से मुखातिब हुआ। जी चचा, मैं मुख्तसरन बोला। पुत्र, सारी गोलियां इनके मुकाबले में सर्फ ना कर देना। कम से कम मेरे परिवार की औरतों के लिए चंद गोलियां जरूर बचा लेना। मैं अपने हाथ से शायद उन्हें ना मार सकूं। ठाकुर की बात सुनकर मैं हकीकतन कांप गया। इसका मतलब था कि शीतल को भी मुझे अपने हाथों से हलाक करना पड़ता। आप अंदेशा ना करें चचा, मैं मजबूत लहजे में बोला। ये मुर्दार इंशाल्लाह इतनी जल्दी हम पर काबू ना पा सकेंगे। इंशाल्लाह, ठाकुर एक अजीब वारफ्तगी से बोला। इसके मुंह से इंशाल्लाह सुनकर मुझे एक अजीब सी लज्जत महसूस हुई थी। सीढ़ियों की तरफ से हल्का सा खटखट सुनकर मैं इससे कुछ कहने का इरादा तक करके सीढ़ियों की जानिब मुतवज्जा हो गया, मगर बगौर देखने पर मुझे भी कोई हेवला दिखाई ना दिया। मैंने अंदाजे से 2 फायर उसकी जानिब दाग दिए। तड़तड़ की आवाज़ से कमरे की जानिब गोलियों की बौछार आई, मगर हम महफूज रहे। डायरेक्ट गोली की जद से तो हम महफूज थे, अलबत्ता पुख्ता दीवार से उचटकर कोई गोली हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकती थी। ठाकुर चचा, आपके पास कितनी गोलियां हैं? 10-12 राउंड हैं। क्यों? मैं हैरानी से मुसफ्फर हुआ। इस दिन तो काफी राउंड उठाकर लाए थे। वो राइफलें और एमुनेशन स्टोर के अंदर है। ठाकुर मायूसी से बोला। मैं जल्दी में वो निकाल नहीं सका हूँ। वैसे ये बुलंद का ग्रोह ही है ना? इसी राक्षस का ग्रोह है पुत्र। उन्होंने गालिबन इंस्पेक्टर अकबर खान को जो धमकी आमिर चिट्ठी भेजी थी वो धोखा दही के लिए थी। इनका असल मकसद हम थे।
ये अल्फाज ठाकुर के मुंह में थे कि गोलियों की टड़टड़ाहट की आवाज के साथ 3 बंदों ने भागकर सीढ़ियों से ऊपर आना चाहा, मगर इनकी बदकिस्मती के मैं तैयार लेटा था। हथियार उन्होंने भी फायरिंग पोजीशन में रखे हुए थे, लेकिन फायर की हसरत दिल में लिए ही वो लोग सुधार गए। मेरी मशीन गन ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया था। इनके गिरने के बाद भी मैंने हफ्जे मुतकदम के तौर पर इन पर 2-3 फायर कर दिए। इनमें से सबसे आगे वाला बिल्कुल दरवाजे के सामने आकर गिरा था। अचानक मेगाफोन के जरिए कोई जोर से बोला, तमाम लोग हथियार फेंक कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। पुलिस आ गई पुत्र, ठाकुर फतेह खुशी से कांपता हुआ बोला। शुक्र है अल्लाह का चचा, अब डाकू भागने की कोशिश करेंगे। आप कमरे की कुंडी लगा दें, मैं उन्हें छत पर चढ़कर रोकता हूँ। मगर पुत्र, छत बहस का टाइम नहीं है, मैं कतक कलामी करते हुए बोला। जब तक मेरी आवाज़ ना सुनो दरवाज़ा नहीं खोलना। ये कहकर मैंने सहन में झांका, मगर कोई डाकू मुझे नजर ना आया। मैं उठकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ा जिनके जरिए मैं छत पर पहुंच सकता था। सीढ़ियों के नज़दीक पहुंचकर मैंने मशीन गन कंधे से लटकाई और जल्दी से लोहे की सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर मैंने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। देवड़ी की छत पर मुझे 2-3 बंदे लेटे हुए नजर आए। मुंडेर के करीब लेटकर मैंने शस्त्र ली और फायर की आवाज़ें माहौल गूंज उठा। दोनों उसी जगह ढेर हो गए। जनूबी दीवार की तरफ झांकने पर मुझे स्तबल के करीब डाकुओं के 6-7 बंदे नजर आए, जो किसी अहम मशवरे में मशगूल थे। पुलिस की तरफ से बार बार ऐलान दोहराया जा रहा था। मैंने मशीन गन सीधी की और उनमें से दरमियान वाले का निशाना लेकर सेफ्टी लीवर को बस पर सेट किया। लेकिन इससे पहले कि मैं लबलबी दबाता, तमाम ने हथियार जमीन पर फेंकते हुए देवड़ी का रुख किया। इसका मतलब ये है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। सोचते हुए मैंने मशीन गन की बैरल नीचे झुका दी। ख्वामख्वा की कत्लो गारत मुझे पसंद नहीं थी। जैसे ही वो तमाम देवड़ी में दाखिल हुए, मैं भागकर नीचे उतरा और कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचकर आवाज दी, चचा दरवाजा खोलो। ठाकुर को शायद दरवाजे से ही लगा खड़ा था। मेरी आवाज सुनते ही झट दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ पुत्र? उसने बेताबी से पूछा। क्या तमाम भाग गए? नहीं चचा, उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। ये अल्फाज में मुंह में थे कि देवड़ी से पुलिस के सिपाही दंदनाते हुए अंदर दाखिल हुए और हवेली में फैलते चले गए। चचा, मैं छत पर छुपने के लिए जा रहा हूँ, ये मशीन गन पकड़ लो, मेरे बारे में उन्हें पता ना लग पाए। ये कहते ही मैंने मशीन गन और इसकी फालतू मैगजीन ठाकुर के हवाले की और छत की तरफ दौड़ पड़ा। वही ऐसी जगह थी जहां मैं पुलिस की नजरों में आने से बच सकता था। मैं बमुश्किल चंद कदम ही ले सका होऊंगा कि गरजदार आवाज सुनाई दी, रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। और इसमें कोई शक नहीं था कि इसने मुझे ही आवाज दी थी। मैंने बेसाख्ता रुकते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। पीछे फिरो, इसी आवाज ने दूसरा हुक्म सादिर किया। मैं जैसे ही घूमा, मेरे चेहरे पर तेज रोशनी पड़ी और मेरी आंखें चुंधी आ गईं। ये मेरा बंदा है थानेदार साहब। ठाकुर गालिबन इसकी आवाज पहचान कर बाहर निकला था। अच्छा, मैं समझा था। अचानक कुछ कहते कहते थानेदार सोच में पड़ गया और फिर जैसे यकदम इसे कुछ याद आया और इसने एक मर्तबा फिर टॉर्च जलाकर मेरे चेहरे का जायजा लिया और हैजानी अंदाज में चिल्लाया, हाँ याद आया, ये तो उमर जान कमांडो है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।